Hello everyone, I am Birbal Solanki, Assistant Professor in CSE Department, Ajay Kumar Garg Engineering College, Ghaziabad. Today here we discuss the Python programming subject, and in this we will discuss the topic that is Pandas library. We will discuss the introduction of Pandas library, and then we discuss the implementation or programs of the Pandas library. We already discussed in previous lectures Python package, creation package, simple program using the inbuilt function, and then matplotlib library, numpy library, and then today we will discuss the pandas library. This is the topic then we will discuss today. So we start the pandas library. So we discuss about the pandas library. What is the Pandas library? The Pandas library is a powerful and versatile library that simplifies the task of data manipulation in Python. Pandas is built on top of the NumPy library, and it is particularly well suited for working with the tabular data such as the spreadsheet or SQL table and CSV files. It is versatile and as of use make it is essential to for the data and then analyst and scientist and the engineering purpose. So this is the main purpose of Python program. That's why I use the Python library in the Python programming. The main use of the data analyst, scientist and engineering working. And then other features that can be discussed. What can you do using the pandas library? तो pandas library के थ्रू हम क्या क्या कर सकते हैं इसके बारे में डिस्कशन करेंगे. So first point is that data set cleaning and merging and joining. First main पॉइंट इज डेटा क्लीनिंग. डेटा सेट को आप क्लीन कर सकते हैं, देन उसके बाद उसको मर्ज कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं. फर्स्ट पॉइंट इज and then handling the missing values are represented as an NaN and floating point as well as a non-floating point, and then column can be inserted and deleted from the data frames. We can create the data frame from the list or dictionary, है ना. तो हम इसमें क्या करेंगे कि pandas लाइब्रेरी का यूज करके एक डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे जो हम उसको अपना डिक्शनरी है और जैसे लिस्ट है उसके थ्रू हम इसको क्रिएट कर सकते हैं. अब इसमें क्या होगा कि वी कैन इंसर्ट दी कॉलम्स एंड डिलीटेड दैट कॉलम. इट कैन बी डन इन इजी वे यूजिंग pandas library. And then powerful group of the functionality or the perform the split and apply and combine operation on data set. हम इसको क्या कर सकते हैं, स्प्लिट करते हैं. जो भी अपना डेटा सेट रहेगा उसको हम स्प्लिट कर सकते हैं. उसमें कितना आप डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं, कितना आपको रो चाहिए, कौन सी रो चाहिए, कौन सा कॉलम चाहिए, तो उसके हिसाब से हम उसको एनालिसिस कर सकते हैं अपने डेटा सेट को. एंड उसके बाद डेटा विजुलाइजेशन, और आप उसको डेटा को विजुलाइज भी कर सकते हैं. डेटा इंपोर्ट कैसे, हाउ टू इंपोर्ट दी pandas library. So we'll use the simple to import the input. We write import and then इसके बाद pandas library and then as PD. We can use a PD as a nickname. Data structure in pandas library. We can two types of data structure. First is the series data structure and then data frame. Then we will discuss the pandas series एंड देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डेटा फ्रेम्स. तो pandas सीरीज pandas सीरीज क्या है आपका, pandas सीरीज के बारे में डिस्कस करते हैं. अब pandas सीरीज इज अ वन डायमेंशनल लेबल्ड एरे कैपेबल ऑफ होल्डिंग द डेटा ऑफ द एनी टाइप्स. कितनी टाइप्स के, इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, पाइथन. इसमें क्या होता है, इसको कहते हैं. पर इसका जो
जो मेन फंक्शनिंग है वो क्या है, वन डायमेंशनल डेटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। एंड इसकी इंडेक्सिंग कहते हैं द एक्सेस ऑफ द आर कलेक्टिवली कॉल्ड द इंडेक्सेस, है ना इसके। अब इसमें जो सेकंड पॉइंट है, पांडा सीरीज इज नथिंग बट कॉलम, बट अ कॉलम क्या होता है, जो भी अपना सीरीज क्रिएट करते हैं तो उसमें एक कॉलम क्रिएट किया जाता है, जिससे हम इजी तरीके से कर सकते हैं डेटा पांडा सीरीज के थ्रू। यानी कि जब भी हम पांडा सीरीज का यूज करेंगे तो उसमें एक कॉलम क्रिएट करना रहता है, तो इजी तरीके से हम उसमें क्रिएट कर सकते हैं इसके थ्रू। एंड देन Excel sheet and table need not be unique but must be of the hashable type. The object support, ये आपका सिंपल सा है कंसेप्ट। अब इसके बारे में हम क्रिएटिंग सीरीज, हाउ टू क्रिएट अ सीरीज। The Pandas series is created by loading the data set from the existing storage. तो existing storage में से कैसे, जैसे हम क्या कर सकते हैं, which can be SQL data set and CSV file और Excel file, और Pandas series can be डिक्शनरी एंड स्केलर वैल्यू क्रिएटिंग दी। आप कैसे क्रिएट करेंगे, सीरीज क्रिएट करेंगे, कैसे क्रिएट करेंगे, ये सिंपल सा एक प्रोग्राम है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक सीरीज क्रिएट कर सकते हैं। तो पहले राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ सीरीज यूजिंग दी पांडास लाइब्रेरी। पांडा लाइब्रेरी का यूज करके हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे एक सीरीज। तो इसमें कैसे करेंगे, देखिए पहले हम इंपोर्ट करेंगे, तो इंपोर्ट कर लिए ना पांडास, इसका निम्न कैसे यूज करेंगे, पीडी। देन इसके बाद एक numpy लाइब्रेरी है जिसको भी डिस्कस ऑलरेडी इन द प्रीवियस लेक्चर, तो numpy लाइब्रेरीज करेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, क्रिएटिंग एम्प्टी सीरीज, एक हमने क्या किया, एम्प्टी सीरीज क्रिएट कर लेंगे, और देन उसके बाद में डेटा इंसर्ट करेंगे, देन उसके बाद प्रिंट भी कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, एम्प्टी सीरीज किया, तो पीडी यहाँ से, ये आपका लाइब्रेरी है तो यहाँ से उठा लिया है ना, डॉट सीरीज, इसका फंक्शन लगा दिया एक तरीके से एट्रीब्यूट्स का, और इसके बाद SER प्रिंट कर दिया इसको। तो इससे क्या होगा, एक एम्प्टी सीरीज क्रिएट हो जाएगी, है ना, सिंपल एरे। अब इसमें कुछ वैल्यू आप इंसर्ट करना चाह रहे थे, np.array, तो इसमें numpy लाइब्रेरी का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, एरे क्रिएट कर सकते हैं, और उसमें वैल्यू हम दे सकते हैं, जैसे g है, e है, e के, और ऐसे इस तरीके से वैल्यू ले लिया, और वो किस में आ जाएगी, इस वाले ऑब्जेक्ट में आ जाएगी, डेटा वाले में। देन उसको क्या कर सकते हैं, इसको हम प्रिंट कर सकते हैं। तो इससे क्या करेगा, pd.series और डेटा, तो इसमें डेटा आ गया, तो इसको हम प्रिंट कर देंगे। तो ये आपका क्या हो गया, सीरीज के फॉर्म में डेटा आ जाएगा, pd.series। इससे क्या मीनिंग है कि हमें टेबल के फॉर्म में डेटा को इंसर्ट कर दिया। अब इंसर्ट कर दिया तो ये किस वेरिएबल के पास पहुंच गया, SER के पास। अब SER में क्या हो गया, ये डेटा आ गया, कौन सा, ये वाला, तो ये कॉलम के फॉर्म में एक डेटा प्रिंट हो जाएगा। तो पांडा सीरीज और कॉमा करके SER लिख दिया यहाँ से, तो ये डेटा होगा, ये आपका GEEKS, तो ये टेबल के फॉर्म में एक डेटा आपका क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो ये अपना सिंपल सा प्रोग्राम था, और इसका जो आउटपुट होगा वो इस तरीके से। तो पांडा सीरीज ये आपकी क्या है, एम्प्टी सीरीज क्रिएट हो गई, इससे क्या हो गई, एक एम्प्टी सीरीज क्रिएट हो गई, इससे ये आपका क्या है, एम्प्टी सीरीज है, इसमें कुछ वैल्यू नहीं दी गई है, इसको प्रिंट करा दिया है ना। तो इससे क्या हो गया कि एक एम्प्टी सीरीज यहाँ पे क्रिएट हो गई। देन इसके बाद एक डेटा दिया, और उसमें डेटा क्या आपने लिया, इनपुट में ये डेटा लिया था, कॉलम के फॉर्म में ये आपका पास डेटा। अब हम देखेंगे हाउ टू क्रिएट पांडा डेटा फ्रेम, और किस तरीके से उसको लोड करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे ना। तो इन द रियल वर्ल्ड अ पांडास डेटा फ्रेम विल बी क्रिएटेड by the loading the data frame from the existing storage. Storage can be SQL dataset, SES file, SQL file, etc. अब एक प्रोग्राम है, सिंपल प्रोग्राम है, जिसके थ्रू हम इसको करेंगे। क्या प्रोग्राम है अपना, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम यूजिंग दी पांडास। तो पांडास के थ्रू करेंगे। तो सिंपल क्या करते हैं, पहले इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट कर लिया हमने इसको पांडा लाइब्रेरी को एज ए पीडी, और लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स। अब इसमें क्या करेंगे, एक लिस्ट, वी नो हाउ टू राइट द लिस्ट, वी राइट द लिस्ट बाय द स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये आपका एलिमेंट हो गया, दिस इज द एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, 4 gigs is टोटल 4, एंड ये आपके क्या हो गए, एलिमेंट हो गए, ये आपका वेरिएबल हो गया, इसमें स्टोर करा दिया लिस्ट को। एंड देन इसके बाद में इसको हम पांडा लाइब्रेरी को एक्सेस कर लिया, इसके एट्रीब्यूट है डेटा फ्रेम, इसको एक्सेस कर लिया। इसमें क्या कर दिया, लिस्ट डेटा फ्रेम के फॉर्म में डेटा को हम क्या कर लेंगे,
इंसर्ट कर दिया, देन उसके बाद क्या करेंगे, डेटा डीएफ में आ गया और डीएफ से क्या हो गया, जिसको प्रिंट कर दिया, तो डेटा फ्रेम में क्या होगा, डेटा फ्रेम से डेटा को क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। तो ये डेटा है आपका डेटा फ्रेम में, इस तरीके से ये आपकी इंडेक्सिंग हो गई और ये आपका डेटा हो गया। अभी इसमें हमने जो भी अपना है, जो भी कॉलम की हेडिंग है वो कुछ इसमें दिया नहीं है, और ना हमने क्या किया है, जो इंडेक्सिंग है उसको कुछ भी देने की कोशिश है, बाय डिफॉल्ट वो 0 से स्टार्ट होता है और जो भी डेटा एलिमेंट्स होते हैं उतने तक उसका इंडेक्सिंग होता है। तो इस तरीके से इसमें किस तरीके डेटा इंसर्ट कर सकते हैं और उसको डेटा फ्रेम का यूज़ करके डेटा फ्रेम में किस तरीके एक कॉलम क्रिएट कर सकते हैं, देन उसके बाद किस तरीके से क्रिएट होने के बाद उसको प्रिंट करा सकते हैं। तो ये आपका प्रिंट करा दिया। देन वी डिस्कस द नेक्स्ट थिंग, दिस इज द क्रिएटिंग डेटा फ्रेम फ्रॉम डिक्शनरी ऑफ एन डी एरे। अभी हमने जो प्रीवियस प्रोग्राम देखा है इसमें हमने क्या है, लिस्ट के थ्रू क्या किया है, एक डेटा फ्रेम क्रिएट किया है। ये पूरा अपना क्या है, एक लिस्ट है। अब हम किसके थ्रू देखेंगे, हम देखेंगे किसे, डिक्शनरी के थ्रू, है ना। तो इसमें देखेंगे कि राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट करना है क्या, डेटा फ्रेम, क्या करना है, डेटा फ्रेम यानी कॉलम क्रिएट करने हैं आपको, किसमें से, डिक्शनरी के फॉर्म में एक डेटा रहेगा, उसमें से हमको क्या करना है, डेटा क्रिएट करना है। और किस लाइब्रेरी का यूज करना है, पांडाज लाइब्रेरी। वी विल डिस्कसिंग द पांडाज लाइब्रेरी। सो फर्स्ट इज दैट this is for the writing the comments hash, then write the comments। ये क्या आपका पाइथन कोड डेमोन्स्ट्रेशन क्रिएटिंग डेटा फ्रेम किसमें से, डिक्शनरी में से, बाय डिफॉल्ट एड्रेसेस आपका बाय डिफॉल्ट होगा। तो इसमें क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लिया पांडा लाइब्रेरी एज ए पीडी, इनिशियल डेटा फ्रॉम लिस्ट, इनिशियल डेटा ऑफ लिस्ट। अब इसमें क्या है, ये अपने डिक्शनरी है, इसमें क्या होता है, डिक्शनरी इज नथिंग बट इज द पेयर ऑफ की एंड वैल्यू। तो इसमें क्या है आपका, ये आपका की है नेम, इसकी वैल्यूज क्या है आपकी, ये कॉलम लगा हुआ है, देन इसकी वैल्यू ये आपकी कौन, टॉम, निक, क्रिस एंड जैक, एंड देन इसके बाद की है आपकी ये, वैल्यू है आपकी दिस। एंड क्रिएटिंग डेटा फ्रेम, तो डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे, तो कैसे क्रिएट करते हैं, तो इसके लिए इसका एट्रीब्यूट यूज करते हैं डेटा फ्रेम, पीडी पांडे लाइब्रेरी को एक्सेस किया, और देन उसके बाद एट्रीब्यूट डेटा फ्रेम, एंड देन उसके बाद डेटा हमने क्या कर दिया, इसको एलोकेट कर दिया। अब इस वेरिएबल में आ गया ये आपका डीएफ। अब इसको क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे डीएफ को। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, डेटा क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो देखिए आपका एक तरीके से क्या हो गया, जो आपका लिस्ट, जो आपका डिक्शनरी है, डिक्शनरी में से आपका ये आपका क्या आ गई, ये आपकी की आ गई। तो की आपका हेडिंग बन गया इसमें कॉलम में, और देन ये आपका क्या बन गया, ये आपका कॉलम बन गया, और ये इसके जो एलिमेंट थे वो उसके कॉलम के फॉर्म में डेटा आ गया। एंड देन दूसरा कौन सा है कि एज, तो एज यहाँ से आ गया, एंड जिसके एट्रीब्यूट थे वो इसके इस तरीके से, और ये आपकी इंडेक्सिंग बाय डिफॉल्ट 0 1 2 3 इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से हम डिक्शनरी का यूज करके हम डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं और उसको प्रिंट करा सकते हैं। देन वी डिस्कस द डीलिंग विद द रो एंड कॉलम्स। तो इसमें हम देखेंगे प्रोग्राम के थ्रू कि किस तरीके से हम कोई रो है उसको हम उसमें क्रिएट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। उस तरीके से कॉलम को हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, किस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ हम देखेंगे। तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द कॉलम सिलेक्शन एंड देन वी डिस्कस अबाउट द रो सिलेक्शन। तो अभी इसमें एक थ्योरी है उसको डिस्कस करते हैं। कॉलम सिलेक्शन, इन ऑर्डर टू सिलेक्ट ए कॉलम इन पांडाज डेटा फ्रेम we can either access the column by calling their column name। तो इसमें एक सिंपल सा है प्रोग्राम, राइट प्रोग्राम टू select column from the created data frame using the pandas। so इसमें क्या करेंगे कि एक डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे, डेटा फ्रेम में से हमें इसमें मल्टीपल आपके क्या हो सकते हैं, कॉलम हो सकते हैं। उस कॉलम से हम क्या करेंगे कि कुछ कॉलम्स को हम सिलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रोग्राम के थ्रू वही हम देखने वाले। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस हाउ टू इंसर्ट दी pandas। तो वी डिस्कस अबाउट हाउ टू इंसर्ट इन प्रीवियस लेक्चर। तो import, we write the import, then pandas and their nickname we call pandas as a pd, defining the dictionary containing the
एम्प्लॉय डेटा। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक डिक्शनरी ले रहे हैं, उसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, जो अपने एम्प्लॉय हैं उनके डेटा को स्टोर करेंगे। तो नेम है, नेम आपका की हो गया, इसकी वैल्यू हो गई आपकी जय, प्राची, गौरव एंड अनुज, ये आपका एक की हो गया, इसकी वैल्यू हो सके। एंड एज एक ही है, और ये इसकी क्या है, एक वैल्यू है, पर वैल्यू में आपका क्या मल्टीपल डेटा है, इस तरीके से आपका ये की है, उसमें एक इसकी वैल्यू है, और वैल्यू में क्या है मल्टीपल कोई एलिमेंट्स हैं, और ये क्वालिफिकेशन, देन इसके बाद ये है। अब कन्वर्ट दी डिक्शनरी इनटू दी डेटा फ्रेम। अब हमने क्या किया, डिक्शनरी तो डेटा इंपोर्ट करा लिया, डिक्शनरी में इंपोर्ट कर दिया डेटा, एंड देन उसके बाद क्या करेंगे, डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे। तो पीडी डॉट डेटा फ्रेम, ये क्या डेटा यहाँ से आ गया आपका, अब ये किस में आ गया, डीएफ में। तो डीएफ में क्या क्या है, देखिए कॉलम, मल्टीपल कॉलम है इसमें, एक तो है नेम, तो इसके डेटा आपके कॉलम में आएंगे, देन उसके बाद एज, तो उसके मल्टीपल एलिमेंट आएंगे, एड्रेस, देन उसके बाद क्वालिफिकेशन। तो ये इस तरीके से आपके मल्टीपल कितने कॉलम है आपके, नेम, एज, एड्रेस एंड देन उसके बाद क्वालिफिकेशन, 4 कॉलम है। इनमें से हम क्या करेंगे, हम इसे कुछ कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। तो कैसे सिलेक्शन होता है उसको देखेंगे। सिलेक्ट 2 कॉलम्स, कौन कौन सिलेक्ट करने वाले हम, तो डीएफ है अपना, ये वेरिएबल है आपका डेटा फ्रेम। अब इसमें हमें क्या देखना है, नेम देखना है, एंड देन उसके बाद क्वालिफिकेशन। तो नेम हमने लिखा, ये क्या है, सिंगल कॉलम, इन्वर्टेड कॉमा, देन उसके बाद कॉमा यहाँ पर, देन उसके बाद। तो इस तरीके से हम कौन से कॉलम को देखना चाह रहे हैं उसके नेम लिखेंगे, किसमें, इन्वर्टेड कॉमा में, देन सेकंड कॉलम प्रिंट कराना चाह रहे हैं तो उसको सेकंड से, थर्ड से, इस तरीके से। यदि हम यहाँ पर एक और कराना चाहते हैं तो कैसे लिखते हैं, यहाँ पर एक तरीके कॉमा लगाते, जैसे मान लीजिए हम नेम, क्वालिफिकेशन, एज, तो एज इस तरीके से लिख देते हैं, हम क्या लिख दे, इस तरीके से एज लिख देते हैं, और इसको बंद कर देते हैं, है ना, ये आपका ये आ जाता है यहाँ पर। तो इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं, हाँ, कि किस तरीके से हम इस कॉलम को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। तो हमने क्या किया, नेम एंड क्वालिफिकेशन, तो नेम यहाँ पे आ गया, एंड क्वालिफिकेशन, तो इनकी क्वालिफिकेशन जो एलिमेंट्स हैं इस तरीके। तो हमने देखा, इस प्रोग्राम के थ्रू हमने देखा कि पांडा लाइब्रेरी में हम डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं, और डेटा फ्रेम क्रिएट होने के बाद हम कोई भी जो हमें जो भी कॉलम चाहिए उसको हमें क्या करना है, जो काम का अपना कॉलम है, जो अपने यूज, इसका यूज़ करेंगे हम अपने जो भी डेटा एनालिसिस के लिए जो भी काम करने वाले हैं, तो उसको हम सिलेक्ट करेंगे, देन इस पर ऑपरेशन परफॉर्म करें। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं। देन रो सिलेक्शन के बारे में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम रो सिलेक्ट करते हैं। तो पांडा प्रोवाइड यूनिक मेथड टू रिट्रीव रो फ्रॉम द डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम डॉट LOC मेथड है, इसके थ्रू हम करते हैं। मेथड यूज टू रिट्रीव रो फ्रॉम द डेटा फ्रेम। रो कैन आल्सो बी सिलेक्टेड बाय पासिंग द इंटीजर लोकेशन टू एन ilog फंक्शन। तो ये अपना सिंपल सा प्रोग्राम है जिसके थ्रू हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से रो को सिलेक्ट किया जाता है। तो डेटा फ्रेम डॉट LOC मेथड यूज टू रिट्रीव रोज फ्रॉम दी पांडा। तो इसमें क्या करेंगे, सिंपल इंपोर्ट करेंगे पांडास पैकेज को, इंपोर्ट कर लिया इसके थ्रू हमने। देन डिफाइनिंग डिक्शनरी कंटेनिंग एम्प्लॉय डेटा। तो जो हमने पहले जो इस तरीके से लिया था उस तरीके से ही हम क्या कर सकते हैं, इसको डेटा को लिया, ये आपका की हो गया, ये इसकी वैल्यू हो गई। तो वैल्यू क्या मल्टीपल है इसमें, ये आपका है ना एज, देन इसकी वैल्यू क्या होगी लिस्ट के फॉर्म में, ये डेटा हो गया, देन एड्रेस, देन उसके बाद क्वालिफिकेशन, है ना। तो ये आपके वैल्यूज। अब कन्वर्टिंग दी डिक्शनरी इनटू द डेटा फ्रेम। तो डेटा फ्रेम सिंपल हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा किस तरीके ने आप कन्वर्ट कर सकते हैं टेबल में। तो पीडी डॉट डेटा फ्रेम, ये डेटा है अपना, और किस में कन्वर्ट हो गया एक तरीके से, जो डेटा फ्रेम है वो आपका किस में हो गया, डेटा फ्रेम में। तो डीएम में आ गया डेटा फ्रेम। अब सिलेक्टिंग जीरो थ्रो, जीरो थ्रो को सिलेक्ट करना है। तो जीरो थ्रो में क्या आएगा, जीरो थ्रो में देखिए यहाँ पर क्या आएगा, एक तो ये हेडिंग बन जाएगा कॉलम का नेम, एज एंड देन उसके बाद एड्रेस एंड क्वालिफिकेशन। अब इसमें से जीरो थ्रो कौन सी आएगी कि नेम के आगे क्या आएगा, जय, एज के आगे 27, एड्रेस के आगे दिल्ली एंड क्वालिफिकेशन के आगे MSc। तो ये आपकी जीरो थ्रो के डेटा को यहाँ पर प्रिंट करने का किया जाएगा। तो प्रिंट df.loc, तो ये इस तरीके से प्रिंट। देखिए नेम, नेम में क्या है जय, जीरो थ्रो का, एज, तो एज में क्या है 27, 27 ले लिया। देन इसके बाद एड्रेस, तो एड्रेस देखिए यहाँ पर एड्रेस, इसमें जीरो थ्रो क्या है दिल्ली, तो ये दिल्ली डेटा आ गया। क्वालिफिकेशन, देखिए क्वालिफिकेशन है तो जिसमें क्या है क्वालिफिकेशन में
क्वालिफिकेशन जीरो तो डेटा क्या है MSc, तो इस तरीके से ये डेटा आपका इस तरीके से इसमें देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम कोई भी रो है उसको कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, तो इस तरीके से हमने देखा कि इस तरीके से हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा ये यहाँ पे ये था df.loc, और जो भी आपका रो चाहिए तो इस तरीके से यहाँ पे रो लिख दीजिए आप। जीरो थे तो जीरो के बारे में बात करेंगे। अब नेम इंडेक्सिंग, तो नेम इंडेक्सिंग यानी कि जो इंडेक्सिंग आपकी बाय डिफॉल्ट जीरो से स्टार्ट हो रही थी 0 1 2 3, तो उसको हम इंडेक्सिंग कर सकते हैं। तो इसका सिंपल सा एक प्रोग्राम है, उसको हम देखेंगे। तो इसमें क्या है, इंपोर्टिंग दी पांडास पैकेज, इंपोर्ट पांडास एज अ पीडी। डेटा हमने लिया क्या कैलोरी में, ये आपका डेटा हो गया, ये आपका ड्यूरेशन, ये आपकी की हो गई, ये इसका डेटा हो गया। पीडी ये इसमें कन्वर्ट कर लिया हमने इसको डेटा फ्रेम में। डेटा किस में आ गया, डेटा हमने इसको पास कर दिया, डेटा फ्रेम कन्वर्ट कर लिया। अब इसमें जो अपनी इंडेक्सिंग यहाँ पर होती थी, आपकी यहाँ पर जो इंडेक्सिंग होती थी क्या होती थी, जीरो से स्टार्ट होती थी, 0 1 2 3 इस तरीके से, है ना। जैसे आपका डेटा होता था उतनी इंडेक्सिंग दे जाता था। अब इसमें क्या करेंगे, जो इंडेक्सिंग है तो इसको हम क्या कर रहे हैं, राइट करने की कोशिश कर रहे थे। इंडेक्सिंग और डे 1, तो जीरो के आगे क्या आएगा आपका डे, ये आपका डे 1 हो गया। और डे 2, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इनको यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इंडेक्सिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं वो हमने इस प्रोग्राम के थ्रू देखा, है ना। अब एक और है इसमें कोई जैसे इंडेक्सिंग डेटा फ्रेम यूजिंग iLock, तो iLock के थ्रू हम इसमें कर सकते हैं कि किस तरीके से आप कोई रो है तो उसको कैसे सिलेक्ट करेंगे, कोई पर्टिकुलर तो ये देखो फंक्शन अलाउ टू रिट्रीव रो एंड कॉलम बाय पोजीशन। तो रो एंड पोजीशन के थ्रू रो एंड कॉलम इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। वी विल नीड टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ द रो दैट वी वांट, किस पोजीशन का डेटा चाहिए, एंड पोजीशन ऑफ द कॉलम वी वांट एज वेल। तो इस तरीके से हम देखेंगे। देखिए जरा, अब इसमें जो प्रोग्राम नेक्स्ट ये थ्योरी है CSV फाइल के बारे में बताया गया। CSV फाइल क्या होती है और किस तरीके से इसको इंपोर्ट करते हैं, तो CSV फाइल किस तरीके से हो सकती है और इसको किस तरीके से इंपोर्ट किया जाएगा उसके बारे में सिंपल सा हम देखेंगे। तो CSV फाइल नथिंग दैट, CSV फाइल स्टैंड फॉर द कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। CSV कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, इट इज अ प्लेन टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट फॉर storing data in table like structure. Each line in the CSV file represent a data recorded and delimiter, typically comma separated each field that recorded. The example of CSV file, the CSV file example is like that. इसका क्या जाएगा, हेडिंग हो जाएगी टेबल की, ये आपकी हेडिंग, ये आपके टेबल के जो एट्रीब्यूट हैं जैसे नेम है, स्कोर है और ये डिपार्टमेंट, 3 एट्रीब्यूट है, इसकी ये क्या हो जाएंगी, वैल्यूज हैं। तो इस तरीके से टेबल स्ट्रक्चर ये CSV फाइल होता है सिंपल से। अब देखिए इसको कैसे इंपोर्ट करते हैं, कैसे रीड करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, पहले सिंपल हम क्या देखते हैं कि कोई भी इंपोर्ट करना रहता है एक पैकेज को, तो यहाँ पे पांडाई लाइब्रेरी के हम पढ़ रहे हैं तो इंपोर्ट करेंगे पांडाई लाइब्रेरी को। तो पांडाई लाइब्रेरी इंपोर्ट करिए, मैकिंग डेटा फ्रेम फ्रॉम दी CSV फाइल। CSV फाइल के थ्रू हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे। देन इसके बाद ये क्या कर लिया, रीड करने का तरीका है कि CSV फाइल को ऐसे रीड करते हैं, pd.read_CSV। तो ये इसका क्या आ गया, फाइल नेम हो गया और एक्सटेंशन हो गया। देन उसके बाद इंडेक्स कॉलम, तो इंडेक्स कॉलम हमने बता दिया नेम, तो क्या होगा नेम, है ना। तो इसको हम वहाँ से क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। रिट्रीविंग द रो बाय द iLock मेथड, iLock मेथड के से रो कौन कौन सी चाहिए, तो वो रो कौन से की, इंडेक्स कॉलम ये नेम है, उसके कौन सा डेटा चाहिए, थर्ड वाला। तो इस तरीके से रो डेटा और iLock, है ना, किसी कॉलम का कौन सा रोज डेटा चाहिए, तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ये आपकी रो 2 प्रिंट हो जाएगी इस तरीके से। तो ये आपका सिंपल सा था जो मैंने डिस्कस किया आज। तो इस तरीके से हम आगे फर्दर इसको प्रोसीड करेंगे। तो ये मैं यहाँ पे ही अपना क्या करते हैं, इसको एंड करते हैं।